Hello guys, once again welcome to all of you. Today I will explain about diterpenoid, acyclic diterpenoid compound. This is phytol. In my previous videos which are uploaded before, in that videos I was explained about the cis terpenoid type of molecules and somewhat monoterpenoids type of molecules. Now I will explain about the diterpenoid type of molecule. In this case, first of all, I will discuss about the phytol. Phytol is an acyclic diterpenoid. Phytol forms a part of the molecules of chlorophyll, vitamin E and vitamin K. Phytol is an optically active compound. It contains two chiral carbon C7 and C11. It is liquid in nature. यानी अगर फाइटॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो जो फाइटॉल स्केलेटन है ये हमारे विटामिन ए में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है और विटामिन के में प्रेजेंट होता है। तो एक तरह से देखा जाए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरपेनॉइड और ये इसका जो नेचर होता है वो लिक्विड इन नेचर होता है। Here you see that the structure of phytol is shown here. This is given in linear chain that the branching started from this is somewhat isotactic type. So the phytol all is related with the hydroxyl group. So here you see that the carbon atom number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. There are near about 16 carbon atom in such a way, and in above here 4 alkyl groups are attached in the form of methyl group. So total number of carbon atom becomes 20, and there are 40 hydrogens and 1 oxygen. So their molecular formula will be C20H40O. ये जो बेस बॉन्ड देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है 7 और 11 पर, और ये शो करता है कि ये जिस कार्बन 7 और कार्बन 11 पॉइंट है ये कायरल पॉइंट है जिसको हम एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं या स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं या कायरल सेंटर भी कहते हैं। तो इस तरह से C7 और C11 ये दो सेंटर हैं जो कायरल कार्बन को शो करते हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि फाइटॉल दिस इज वन टाइप ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नाउ फर्दर इंक्रीजिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइटॉल। Molecular formula is determined by elemental analysis and molecular weight determination is C20H40O। यानी मॉलिकुलर फार्मूला इसका जो C20H40O है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है या मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन के थ्रू इसे प्रूव किया गया है कि इसका जो है मॉलिकुलर फार्मूला ये है। फाइटल फॉर्म्स मोनोएसिटेट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड on oxidation with chromic acid. Phytol forms a monocarboxylic acid, that is phytanic acid, having same number of carbon atoms, suggesting that phytol is a primary alcohol। यानी अगर जो एसिड का एल्कोहल अगर एसिड में कन्वर्ट होता है वो भी टर्मिनल पोजीशन पर, एंड देयर आर फॉर्मेशन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, दिस प्रूव दैट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज एट द टर्मिनल पोजीशन बिकॉज the carboxylic group is formed at the terminal position of the phytol. On catalytic reduction, phytol forms dihydrophytol. Formation of dihydrophytol indicates that it has one double bond. यहाँ पर अगर रिडक्शन करा दिया जाए, here you see that the number of hydrogen atom becomes 40 से 42 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो एडिशन वहीं पर होगा जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये प्रूव करता है कि दो हाइड्रोजन के इस हाइड्रोजनेशन से ये प्रूव होता है कि फाइटॉल में एक डबल बॉन्ड अवेलेबल है।
Phytol has the molecular formula C20H40O. It contains one double bond. This is because there is addition of plus 2H. Thus, the molecular formula of pyrene saturated hydrocarbon is C20H42, that is CnH2n plus 2. Here you see that CnH2n plus 2. This CnH2n plus 2 proves that this is the acyclic compound or aliphatic compound, which is acyclic or aliphatic or open chain. Hence, phytol is an acyclic compound. तो ये जो C20H40 आफ्टर हाइड्रोजनेशन के बाद जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्टेंड होता है वो ये प्रूव करता है कि फाइटॉल एक एसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि एसाइक्लिक कंपाउंड में जो है कोई चेन नहीं होती, कोई रिंग नहीं होती है, और ये लीनियर चेन में होते हैं, ओपन चेन में होते हैं. लीनियरली ब्रांच भी हो सकता है बट दे आर इन ओपन फॉर्म, देयर इज नो साइक्लाइजेशन. दिस प्रूव दैट फाइटॉल इज एसाइक्लिक कंपाउंड. नेक्स्ट फीचर प्रूव दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी जो डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेशन के थ्रू प्रूव होता है कि इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए फाइटॉल चेन में, और प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ उसका क्या रिलेशन होना चाहिए उस डबल बॉन्ड का, वो उसके एडजेसेंट पोजीशन पर होना चाहिए, दैट इज विशनल पोजीशन पे होना चाहिए, या फिर जेमिनल पर होना चाहिए, एंड सो ऑन. सो फाइटॉल ऑन ऑक्सीडेशन विथ मैग्नीज ऑक्साइड फॉर्म्स एन एल्डिहाइड. दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन shows the primary hydroxyl group of phytol is an allylic CH2OH group. एलाइलिक का मतलब होता है, एलाइलिक ग्रुप हम तब कहते हैं, ये प्रोपीन से बनता है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो इस प्रोपीन से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है, देखिए यहाँ पे बन जाता है CH2 और यहाँ पे एक रिएक्टिव सेंटर बन जाता है. तो इस ग्रुप को कहा जाता है एलाइलिक ग्रुप. CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक्टिव साइट, इसको एक्टिव साइट बोलते हैं. अब यहीं पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, एलाइलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रुप अवेलेबल होगा, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड C CH2OH, एलाइलिक एल्कोहल. Thus partial structure can be represented as somewhat like this. On ozonolysis, phytol produce glycoldehyde and a saturated ketone C17H36CO. This reaction can be represented as follows. C17H36C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2H ओजोनोलाइसिस होता है यहाँ पर, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. सो द कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड गिव्स ब्रोमोफॉर्म एंड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. दिस रिएक्शन शोज दैट कीटोन इज मिथाइल एल्काइल कीटोन. दिस रिएक्शन कैन बी फार्मुलेटेड एज फॉलोज, यानी इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन वही मॉलिक्यूल या कंपाउंड देते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप अवेलेबल होता है, CH3CO ग्रुप अवेलेबल होता है. तो इसका मतलब है फाइटॉल में CH3CO ग्रुप अवेलेबल है, जिसके कारण जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन, दैट इज ये ब्रोमिनेशंस ब्रोमोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है. So on the basis of the structure of the ketone, the partial structure of phytol may be represented somewhat like this. Here you see that C16H33 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये इसका जो है पार्शियल स्ट्रक्चर है. और the formula of phytol led to the suggestion that it is composed of 4 reduced isoprene units. इसमें 4 isoprene यूनिट जुड़े हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म में. रिड्यूस्ड मतलब वहाँ डबल बॉन्ड अवेलेबल नहीं होगा. तो और ये आइसोप्रीन यूनिट क्या है कि इसमें CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप होना चाहिए आइसोप्रीन यूनिट. आपको पता होगा कि जो हमारा टर्पेनाइड्स है या टर्पिन
मालिक्यूल्स है, ये आइसोप्रीन रूल्स पर ही आधारित है, जिसे हम पहले आपको बता चुके हैं. If this is so, and assuming that the units are jointed head to tail, the structure of ketone may be represented as follows. Here you see that the structure becomes like this. आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से चलिए तो आप देख सकते हैं जहाँ पर ये डैसेस दिखाए गए हैं, समवॉट ये जो दिखाए गए यहाँ पर ये, तो ये एक एक आइसोप्रीन यूनिट को इंडिकेट करता है रिड्यूस्ड फॉर्म में. रिड्यूस्ड का मतलब डबल बॉन्ड ये सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है दो हाइड्रोजन को जोड़ करके. The above structure of ketone has been confirmed by its synthesis. After that, when there is synthesization into the phenisol under catalytic reduction and PBr3, there is formation of CH2OH जो है ये कन्वर्ट हो जाता है CH2Br में. और finally boil with kinetic hydrolysis with KOH, there is ketonic structure will be formed such type like this. Thus the structure of phytol can be represented as this in the fully form. Here this is because this is ketone and this is ketone. यहाँ पर आप देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर को प्रूव करता है, ये कीटोनिक स्ट्रक्चर, ये इनोलिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ जब कीटोन होगा जैसे C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH जुड़ा है, तो होगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये इसके ऊपर, तो यहाँ डबल बॉन्ड और ये COH ग्रुप, तो ये ओन है और ये इनॉल है. तो एक तरह से दोनों एक आइसोमेराइज फॉर्म है जिसे हम कीटो इनॉल कहते हैं. फाइनली द स्ट्रक्चर विच आर रिप्रेजेंटेड देवर, दिस इज द structure of phytol which is confirmed by the synthesis from ketone by the reduction of sodamide NaNH2. There is formation of ene which are undergoes reduction in the presence of Lindlar catalyst H2PD barium sulfate. ये एल्काइनिक ग्रुप जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एलाइलिक रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है फाइटॉल का. तो ये सारे रिएक्शंस ये प्रूव करते हैं कि जो फाइटोलिक चेन्स है यानी फाइटॉल चेन है वो समवाट एसाइक्लिक चेन है और जिसमें नियर अबाउट 4 आइसोप्रीन यूनिट्स, 3 रिड्यूस्ड फॉर्म में और एक आइसोप्रीन यूनिट जुड़ी हुई होती है और इसमें एक CH3CO ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जो ये प्रूव करता है कि इसमें केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है. और ये कीटोनिक ग्रुप अंडर रीअरेंजमेंट इनॉल फॉर्मेशन करता है जो ये शो करता है कि इसमें इन और ऑल यानी C डबल बॉन्ड C और OH ग्रुप दोनों अवेलेबल होता है और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट यानी एलाइलिक पोजीशन पर अटैच्ड होते हैं. जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो एलाइलिक पोजीशन यानी CH2OH CH डबल बॉन्ड CH2 के फॉर्म में अटैच्ड होता है. ओवरऑल दीज स्ट्रक्चर प्रूव दैट this is the acyclic diterpenoids. So अगला कंपाउंड है एबियोटिक एसिड, एबाइटिक एसिड. दिस एबाइटिक एसिड belongs to the resin acids of turpentine and wide spread in conifers such as various pines, that is pinus, larch trees, larix and firs abies. Incisions cut in the bark of pine trees result in the formation of exudations of an polyresin. Resin on steam distillation yields volatile essential oils, turpentine oils, and non-volatile substance known as rosin, colophonyl or resin acids. Rosin is a complex mixture of acids largely of the formula C19H29COH. A major constituent of resin is abatic acid. Abatic acid does not occur naturally but is
formed from labile precursors during the collection, storage and steam distillation of the oleoresin. The labile precursors of abatic acids are levopimeric acid and neoabatic acid. Both of these are isomerized to abatic acid in the presence of acid or heat. जनरली ये देखा जाए तो जो एबाइटिक एसिड होता है ये नेचुरली नहीं पाया जाता, जबकि ये फॉर्म होता है एक प्रिकर्सर्स के थ्रू, और इसमें जो है लीवोपाइमरिक एसिड है नियोएबिटिक एसिड जो होते हैं ये दोनों आपस में आइसोमेराइज हो जाते हैं और ये आइसोमेराइज हो करके ये एबिटिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनिशियली यहाँ नियोएबिटिक एसिड जो है जब इसका अंडर प्रोटोनेशंस हाइड्रोजनेशन कराया जाता है तो एबाइटिक एसिड बनता है, और एबाइटिक एसिड इक्विलिब्रियम स्टेट ये फॉर्म करता है लियोपाइमरिक एसिड्स में। सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 170 to 175 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये एक ट्राई साइक्लिक डाइटरपेनॉइड है। अभी आप जिन्हों पढ़ा फाइटॉल्स के बारे में वो तो एक ए साइक्लिक डाइटरपेनॉइड था, लेकिन एबाइटिक एसिड जो है ये एक ट्राई साइक्लिक डाइटरपेनॉइड है। Here you see that the structure of this abetadine etinoic acid, this is abatic acid, और ये S कॉन्फ़िगरेशन नियर अबाउट शो करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि -713 का मतलब होता है कि यहाँ देखिए पोजीशन नंबर 7 और पोजीशन नंबर 13 ये डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है, और पोजीशन 4 और पोजीशन 10 जो होता है 10 ये कायरलिटी को इंडिकेट करता है कि इसमें जो है कायरल सेंटर प्रेजेंट है, यानी 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, एक C4 पर अवेलेबल एक C10 पर अवेलेबल है। और इस कायरलिटी के नाते ये जो ट्राईसाइक्लिक डाइटरपेनॉइड एबाइटिक एसिड्स है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और इसमें जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो माइनस होती है, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। नाउ आई विल कम द नेक्स्ट इट्स फीचर ऑफ abatic acid, that is the constitution of abatic acid. What is the constitution? Means what is the molecular formula and how many number of double bonds, and what is the position of rings, or what is the position of alkyl group, and so on. These are described with these sets. The constitution of abatic acid, actually the molecular formula of abatic acid is C20H30O2. C20H30O2. एबाइटिक एसिड गिव्स इफरवेंसेस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर जो चीज़ इफरवेंसेस देती है तो इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब आप टेस्ट करते हैं तो एसिडिक टेस्ट तो फिनॉल की तरह शो करता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन जब हम कन्फर्मेशन करते हैं कि ये जो एसिडिक ग्रुप है ये फिनॉल का है या फिर एसिड का है, तो उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का पिंच जो है वो डालते हैं सॉलिड, तो बहुत तेज़ी से जो है ब्रिस्क इफरवेंसेस ऑफ CO2 रिलीज होती है, तो जिससे ये प्रूव होता है कि इसमें CO2 ग्रुप अवेलेबल है। तो CO2 ग्रुप अवेलेबल का मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड abatic acid is very difficult to estify, and it evolves carbon monoxide on heating with concentrated sulfuric acid. एक तरह से देखा जाए तो इसका एस्टिफिकेशन बहुत डिफ़िकल्टी से होती है, ये एक्चुअली एस्टिफाई हो ही नहीं पाता है। These results suggest that carboxylic group of abatic acid present on a tertiary carbon. अगर ये सेकेंडरी पर होता तो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते, प्राइमरी पोजीशन पर होता तो बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं एस्टिफिकेशंस के, लेकिन जब ये जब टर्शियरी पोजीशन पर होता है
टर्सरी कार्बन पोजीशन पे अटैच्ड होता है ये एस्टरिक ग्रुप, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वहाँ पे एस्टरिफिकेशन के चांसेस जो होते हैं एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये एस्टरिफिकेशन शो नहीं करता, इससे ये प्रूव होता है कि एबाइटिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो टर्सरी कार्बन से अटैच्ड है। नेक्स्ट वन इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एबाइटिक एसिड एब्जॉर्ब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 4 हाइड्रोजन एटम्स, and formation of tetrahydroabatic acid, that indicating the presence of 2 double bonds. 4 hydrogen means 2 double bonds. Carboxylic acid considered as a substituent. The parent saturated hydrocarbon of the abatic acid would be C1934. This parent saturated hydrocarbon corresponds to the general formula CnH2n-4. Thus abatic acid is a tricyclic compound. Dehydrogenation of abatic acid with selenium, sulfur or palladium carbon affords phenanthrin derivative. phenanthrin में आपको पता होगा कि इसमें 3 साइक्लिक न्यूक्लियस जो है अटैच्ड होता है, और जनरली ये जो न्यूक्लियस होता है एरोमेटिक न्यूक्लियस होता है phenanthrin में। डेरिवेटिव, दिस इज द रिटीन. रिटीन इज आइडेंटिफाइज एज 7 isopropyl 1 methyl phenanthrin by oxidative degradation and synthetic methods. ये हमारा यानी अगर एबाइटिक एसिड का सेलेनियम के साथ रिडक्शन करा दिया जाता है डिहाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है जिसे रिटीन कहा जाता है, और इसमें 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं, 2 आपस में फ्यूज्ड होता है और एक साइड आर्थो पोजीशन पर फ्यूज्ड होते हैं. So chromium trioxide oxidation of retin gives retin-quinone, which on further oxidation with alkaline potassium permanganate yields hydroxy keto acid. और फिर जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो फ्लोरिनोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, which again heated with the potassium hydroxide that form tricarboxylic acid. तो इस तरह से आप देखिए सेलेनियम से एक रेटिन का फॉर्मेशन हुआ, क्रोमिक एसिड के साथ रेटिन क्विनोन का फॉर्मेशन होता है, फिर KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन होता है. तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डेरिवेटिव एंड देन द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विच इज अगेन कन्वर्टेड इनटू फ्लोरिनोन फॉर्मेशन होता है. आफ्टर दैट हियर अंडर KOH एंड डीकार्बोक्सिलेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाईफिनाइल, इससे बाईफिनाइल का फॉर्मेशन होता है. तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स फ्लोरिनोन. दिस इंडिकेट दैट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ फ्लोरिनेन कंपाउंड डज नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड, whereas compound 6 forms an anhydride. This result shows that one carboxylic group in 5th must be ortho to the central ring. यानी ये रिएक्शन ये प्रूव करते हैं कि एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो आर्थो पोजीशन पर अटैच्ड होगा. दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एल्काइल ग्रुप इन रिटेन, एंड सो वन एल्काइल ग्रुप मस्ट बी एट पोजीशन 1 in the phenanthrin nucleus. Fusion of compound 4th with KOH efforts 4 isopropyl biphenyl. Here you see that when this compound under KOH fusion, this form the 4 isopropyl biphenyl. This formation indicates that the phenanthron nucleus of retin has isopropyl group at position 7. So here you see that when 2 benzene nucleus undergoes we consider this is the acylation, alkylation in presence of anhydrous ClCl3. तो यहाँ पर देखिए कि जो एल्काइल ग्रुप CH-CH3 ट्वाइस ग्रुप्स है जो वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, और वंस अगेन एनहाइड्राइड से जब इसका रिएक्शन कराया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वन दूसरे रिंग से कीटोनिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच्ड हो जाता है. आफ्टर दैट मिथाइल एल्कोहल और HCl के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है, तो यहाँ पे कुछ
इस तरह से एस्टरिक टर्मिनल एस्टरिक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में अंडर डिहाइड्रेशन यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये बॉन्ड यहाँ आता है, इसे ये बॉन्ड यहाँ आता है और यहाँ से OH और H निकल जाता है और यहाँ देख सकते हैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और फिर जैसे ही इनका रिडक्शन कराया जाता है इस डबल बॉन्ड का, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन और यहाँ साइक्लाइजेशन हो जाता है, CH3 और निकल जाता है यहाँ से। आफ्टर दैट जब जिंक अमलगम और कॉन्क HCl के साथ और सेलेनियम के प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप है, क्लेमेंजन रिडक्शन होता है। क्लेमेंजन रिडक्शन में क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो जैसे ही इनका जो है रिडक्शन करा दिया जाता है तो रेटिन का फॉर्मेशन होता है। So formation of retin from the abitic acid suggests that abitic acid has the carbon skeleton as first A, यानी कुछ इस तरह से इसमें कार्बन स्केलेटन होता है जिसमें 3 रिंग्स आपस में फ्यूज होती हैं, जिसे ट्राईसाइक्लिक रिंग कहते हैं। और इसमें एक एल्काइल ग्रुप और एक आइसोप्रोपाइल, यानी एक मिथाइल ग्रुप और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये जो है अटैच्ड रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 कार्बन 1 COH एंड 1 एंगुलर CH3 ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। So position of the carboxylic group abitic acid on methylation give abitate which on reduction of yields abitinol. Abitinol undergoes dehydration when treated with PaCl5 to give methyl abitin 10. This methyl abitin on dehydrogenation gives homoretin. तो यहाँ पे होमोरेटिन का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप इक्वेशंस जो रिएक्शंस के इक्वेशंस दिए हैं उसे आप देख सकते हैं। एबाइटिक एसिड जो है डाइजोमीथेन से रिएक्शन करके यहाँ मिथिल एबाइटेट फॉर्मेशन होता है और फिर सोडियम एल्कोहल्स के साथ एबाइटिनॉल का फॉर्मेशन होता है। द रिएक्शन फर्दर मूव to form methyl abitin which undergoes reduction in presence of selenium to give homoretin. There is formation of homoretin 3 cyclic benzene nucleus ring के साथ एक एल्काइल और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। Formation of homoretin from above set of reactions can only be explained if one can assume that carboxylic acid इज प्रेजेंट एट C4 इन एबाइटिक एसिड। और ये तभी होता है कि जब ये प्रूफ होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो C4 ग्रुप पे प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये जो है अंडर NaOH के प्रेजेंस में रिड्यूस्ड होता है एल्कोहल में एसिड। और फिर एल्कोहल में जैसे रिड्यूस्ड होता है तो यहाँ से होता क्या है कि डिहाइड्रेशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिहाइड्रेट हो जाता है और यहाँ बनता है कार्बोनियम आयन। आप देख सकते हैं कार्बोनियम आयन में फिर क्या होता है, शिफ्टिंग होती है किसकी, एल्काइल बॉन्ड की। एल्काइल ग्रुप जो है ये शिफ्ट हो जाता है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये पोजीशन देखिए पॉजिटिव हो जाता है कुछ इस तरह से 1 2 शिफ्ट। जैसे ही 1 2 शिफ्ट होता है यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है और इस तरह से डबल बॉन्ड क्रिएशन करता है और मेथिल एबाइटिन का फॉर्मेशन करता है। और फाइनली जो है आप देख सकते हैं सेलेनियम से फिर दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ये देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिड्यूस्ड होके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, thus partial structure of hepatic acid can be represented as follows. Here you see that 3 tricyclic rings which are attached with fused with each other in form of A, B and C, and here the methyl and carboxylic groups are attached at the position number 4, and one isopropylic group in nucleus C is also attached
these structural formulas with one molecular CH3 plus two double bond shows that this is the structure of homoretine. Position of angular methyl group. Oxidation of hepatic acid with potassium permanganate gives a mixture of product among which are 2 carboxylic acid, and dehydrogenation of these two acid gives metazylene and 1,2,3 trimethylene benzene respectively. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो होमोरिटीन है इसमें 2 डबल बॉन्ड और 1 एंगुलर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर इसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दिया जाता है तो आप देख सकते हैं 2 रिंग्स इसमें ब्रेक डाउन हो जाती है और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, मिक्सचर ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सेलेनियम के प्रेजेंस में रिड्यूस्ड हो जाता है तो डाईमिथाइल बेंजीन और ट्राईमिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। In both these hydrogenation there is loss of 3 carbon atoms, and if we assume that these are the 3 carboxylic group, then 2 methyl groups in 11 and 12 must be in the meta position. So formation of these represented survival of ring A of hepatic acid because the nuclear methyl group at C4 is intact, and since the disruption of ring B would lead to creation of only 2 carboxylic group, while the third represent the original carboxylic group at C4 of hepatic acid. So the formation of metazylene and 1,2,3 trimethyl benzene form 11 and 12 respectively indicate that 1,3 relationship of the methyl group in ring A. So here you see that this is the general structures of hepatic acid with 2 double bonds. So all these features confirm that the position of the double bond in the nucleus or in the ring does not contain it could have been oxidized into smaller fragments. Moreover, as none of the oxidation products contains ring B or C, so the double bonds must be present in ring B or C or both. But the ultraviolet spectrum of hepatic acid exhibits a maximum at 238 nanometer, epsilon maximum 16,000. This value is indicative of the fact that both double bonds are conjugated. ये जो एप्सिलॉन मैक्सिमम और लैम्डा मैक्सिमम जिसे हम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहते हैं उसकी जो वैल्यू होती है 238 नैनोमीटर, तो ये नियर अबाउट उसी की आती है जहाँ पे कंजुगेशन होता है। तो कंजुगेशन डबल सिंगल डबल, तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों डबल बॉन्ड हैं वो कंजुगेटेड है। और दिस लैम्डा मैक्सिमम आल्सो इंडिकेट दैट बोथ डबल बॉन्ड्स आर नॉट होमोएनुलर बट आर हेट्रोएनुलर, यानी रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है, जस्ट लाइक दिस। हेट्रोएनुलर का होमोएनुलर का मतलब जो दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो, हेट्रोएनुलर का मतलब जो दोनों डबल बॉन्ड 2 रिंग में हो और ये एक दूसरे से कंजुगेटेड फॉर्म में हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इसको कुछ इस तरह से देखा जाए, इस स्ट्रक्चर्स को, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और ये दोनों डबल बॉन्ड जो है इन दोनों डबल बॉन्ड को हेट्रोएनुलर कहा जाता है। और अगर यही दोनों डबल बॉन्ड इस तरह से होता है रिंग में, ऐसे कंजुगेटेड होता है, तो इस डबल बॉन्ड को होमोएनुलर डबल बॉन्ड कहा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा जाए हेपेटिक एसिड की, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आप देख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एक स्टीरियोकेमिस्ट्री है दोनों केसेस में। डाईहाइड्रो हेपेटिक एसिड, टेट्राहाइड्रो हेपेटिक एसिड का जो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है वो ये कंफर्म कर रहा है कि ये एक तरह से रेसिमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, रेसिन मिक्सचर जिसको हम कहते हैं। And since both have the same configurations,
So this configuration may also proved by the action of this beta tetralone and tosyl-CoA and with Michael addition. Here you see that this is synthesized and give a different type of intermediate product which are finally converted into the scheme. Here you see that this is the structure of final structure of A by T. What happened here? I will explain this in detail. The stereochemistry of abatic acid has been confirmed by the synthesis of racemate dihydroabatic acid and which are explained in the scheme 9 because both have same configuration. यानी इसमें जो configuration है वो लगभग जो है वो दोनों का सेम configuration है. तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि एरोमेटिक न्यूक्लियस विथ कीटोन जिसे हम बीटा टेट्रालोन कहते हैं, इसका जब एक तरह से एल्काइलेशन कराया जाता है, एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं और यहाँ पर पायरोलिडीन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में और हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में. तो यहाँ पर देख सकते हैं एल्काइल ग्रुप जो है ये साइक्लिक ग्रुप में इंट्रोड्यूस हो जाता है. ये इसका सबसे एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप आप देख सकते हैं ये इंट्रोड्यूस हो जाता है कुछ इस तरह. और फिर यहाँ जब माइकल एडिशन कराया जाता है, माइकल एडिशन में होता है एडिशन नंबर 1 to 4 यानी 1 2 3 4. ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा. तो पहला अगर यहाँ होगा दूसरा चौथे पोजीशन पर होगा. इस तरह से कुछ माइकल एडिशंस के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलोजनेशंस यहाँ पर हो रहा है माइकल एडिशंस के थ्रू और हाइड्रोजन एटम यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है और ये डबल बॉन्ड CH2 पर अटैक करके Br यहाँ से रिलीज़ कर रहा है. और यहाँ देखिए CH2 CO C2H5 एस्टरिक ग्रुप जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है इस रिंग में और ये लगभग बिलो द प्लेन होता है. आफ्टर दैट हियर यू सी दैट कार्बोनिल ग्रुप. ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इसका जब थायो अल्कोहल से रिएक्शन होता है, थायो अल्कोहल और थायोल जिसे उसको बोलते हैं, ये थायोल को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. थायोल इज रिप्रेजेंटेड SH. तो यहाँ से H, यहाँ से H, ये डबल बॉन्ड O से यहाँ से देखिए एलिमिनेट हो जाता है और ये ग्रुप जो है डाइथियन ये जुड़ जाता है. तो यहाँ पर देखिए इस साइक्लिक हेक्सेन रिंग में ऑक्सीजन यहाँ से H2O के फॉर्म में लिबरेट हो गया और यहाँ पर डाइथियन ग्रुप जुड़ जाता है. और ये डाइथियन वंस अगेन हियर यू सी दैट देयर इज द साइक्लाइजेशन ऑफ द रिंग. यहाँ रिंग का साइक्लाइजेशन हो जाता है. फिर अंडर रिडक्शन हियर यू सी दैट अंडर रिडक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड यहाँ से पैलेडियम और H2 के प्रेजेंस में यहाँ रिड्यूस्ड हो जाता है. ये डबल बॉन्ड यहाँ देखिए आप डाईहाइड्रो का फॉर्मेशन कर लेता है जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में. अब यहाँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट C6H5 MgBr और हाइड्रोनियम आयन और क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में बारबलर विल्डेन डिग्रेडेशन जिसे कहा जाता है और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट 8 का. और इसमें आप देख सकते हैं कि एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट इन बोथ द पोजीशन एट एबव द प्लेन. जो वेज बॉन्ड पे लगाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं वेज बॉन्ड पे और यहाँ भी वेज बॉन्ड पे है. और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन एटम ये दोनों जो है डैश बॉन्ड पर अवेलेबल है. ये इस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन जो है ये दोनों स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू ये जो टेट्राहाइड्रोएरोटिक एसिड और डाईहाइड्रोएरोटिक एसिड्स ये जो है बोथ आर फॉर्म अंडर द स्किन which gives the abatic acid has been confirmed by this is the one type of racemate and also
form the dehydroaromatic acid and which have the near about same configuration with this. So all these tricyclic diterpenoids has a very important characters which is related with the terpenes. That's all.